آگے آگے رہے، اس لیے کہ وہ اس دیش کی ہر قیمت پر آزادی چاہتے تھے اور انہیں نام سے اتنا مطلب نہیں تھا، اور یہ تھا کہ کسی بھی طرح اس ملک پر جو غلامی کا دھبا لگا ہوا ہے یہ دھبا ختم ہو جائے۔ سبھاش چندر بوس یہ آزادی کے بڑے متوالوں میں ہیں۔ انہوں نے جب گاندھی جی اہنسا کی تحریک چلا رہے تھے، چاہ رہے تھے کہ عدم تشدد کے ذریعے انگریزوں کو اس ملک سے بھگا دیں، یہ نوجوان ان میں ایک نیا جذبہ اور ولولہ پیدا ہوا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو طاقت کے بل پر انگریزوں کے ساتھ لڑیں گے، مریں گے، قربانی دیں گے اور انہیں بھگائیں گے۔ چنانچہ وہ برما گئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جرمنی بھی گئے، آزاد ہند فوج بنائی۔ آزاد ہند فوج جو انہوں نے بنائی ہے، دیکھیے کیسے جذبات ہوا کرتے تھے اس وقت ان حضرات کے۔ یہ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر رنگون گئے۔ آپ حضرات کو تاریخ معلوم ہے کہ کیسے انہیں انتہائی قسم پرسی کے عالم میں رنگون میں آخری سانس لینے پہ مجبور ہونا پڑا بہادر شاہ ظفر۔ جب یہ پہلے پہنچے ہیں بہادر شاہ ظفر کے مزار پر، یہ 1942 کی بات ہے، تو وہاں جا کر انہوں نے قسم کھائی ہے بہادر شاہ ظفر کے مزار پہ سبھاش چندر بوس جی نے، اور یہ کہا تھا کہ میں اس قبر والے کے سامنے یہ قسم کھاتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس دیش کی آزادی کے لیے انہوں نے لڑائی کی قیادت کی تھی، 1857 کی جو لڑائی ہے وہ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں لڑی گئی ہے، وہی اس کے سربراہ اعلیٰ تھے۔ انہوں نے آزادی کے لیے جس لڑائی کا آغاز کیا تھا، سبھاش چندر بوس اور اس کے ساتھی مل کر اس لڑائی کو اپنی انتہا تک ضرور پہنچا کر دم لیں گے۔ وہاں انہوں نے قبر پہ یہ قسم کھائی، اور اس کے بعد انہوں نے جو جھنڈا بنایا تھا اس جھنڈے میں یہی 3 کلر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیپو سلطان شہید کا جو شعر ہے اس شعر کو بھی انہوں نے بیچ میں رکھا تھا کہ ہمارا یہ شعر ہمارے ساتھ ہے، اس کا جذبہ اور ولولہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس طرح ہم اپنے ملک کو آزاد کرا کے رہیں گے۔ اور اس قبر والے کے سامنے انہوں نے قسم کھائی تھی، اس لیے جب وہ میدان میں آئے تو میدان میں مسلمانوں نے بھی انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، برادران وطن نے بھی ہاتھوں ہاتھ لیا۔ جب برما میں انہوں نے چندے کی اپیل کی ہے تو وہاں ایک عبدالحمید صاحب تھے، وہی برما کے بڑے متمول تھے اور اچھی خاصی ان کی تجارت تھی، گجرات کے رہنے والے تھے۔ جب انہوں نے چندے کی اپیل کی ہے اس وقت انہوں نے سب سے بڑی رقم دان دی۔ پوری آزادی کی تاریخ میں اتنی بڑی رقم انفرادی طور سے کسی کی نہیں لگی ہے جو اس مسلمان تاجر کی لگی ہے۔ انہوں نے اسی وقت آزاد ہند کے لیے 1 کروڑ روپے کی خطیر رقم ادا کی۔ آپ اندازہ لگ سکتے ہیں، اس لیے 1997 میں جب حکومت نے ایک پروگرام کیا تھا تو ان کے عبدالحمید کے بیٹے کو بلا کر اعزاز کیا تھا۔ تو بہرحال مالی اعتبار سے بھی مسلمان کہیں پیچھے نہیں رہے، اور اسی طرح اس ہندوستان کو آزاد ہونے کے بعد جب ضرورت تھی اپنے قانون کی، آئین کی، ظاہر ہے کہ آئین ساز اسمبلی پہلے ہی وجود میں آ گئی تھی۔ 1946 سے یہ کام چل رہا تھا کہ ہندوستان کا اپنا قانون کیا ہوگا، اس کے لیے کوششیں جاری تھیں۔ تو 296 ممبر تھے اس اسمبلی کے، ان کے لیے 2 شرطیں تھیں۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دیش کا جو دستور ہے، آئین ہے، اسے بنانے میں مسلمانوں کا کتنا بڑا اور اہم کردار ہے۔ 296 ممبران اسمبلی کے لیے 2 شرطیں تھیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی اسمبلی حلقے سے الیکشن جیت کر آئیں، تبھی انہیں نمائندگی ملے گی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ 5 ممبران اسمبلی کم از کم اس کی تائید کریں تو اسے قانون ساز اسمبلی کا رکن بنایا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس میں قانون کی پڑھائی پڑھے ہوئے اور دانشور آدمی تھے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب، وہ پیش تھے، اس میں لوگوں کو ان سے بڑی امیدیں تھیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ 1946 میں جب اسمبلی کا الیکشن ہوا، ممبئی کی بائیکلہ سیٹ سے ڈاکٹر صاحب نے پرچہ نامزدگی داخل کیا، لیکن وہ اس الیکشن کو ہی ہار گئے، جیت ہی نہیں سکے۔ اب ان کے لیے سارے راستے بند ہو گئے۔ ایک کانگریس کے لیڈر نے اس وقت کہا تھا کہ ہم نے بابا صاحب کے لیے اسمبلی میں آنے کے صرف دروازے نہیں بلکہ کھڑکیاں بھی بند کر دی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اسمبلی میں پہنچیں اور ایک ایسا سیکولر قسم کا دستور بن سکے۔ بہرحال انہیں روکنے کی ساری کوششیں ہو گئی، ڈاکٹر صاحب بھی نا امید ہو گئے، اب تو کوئی راستہ ہے نہیں۔ لیکن اس وقت بنگال کے ایک لیڈر تھے منڈل صاحب، جن کے نام پر منڈل کمیشن بنا، انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آئیے، بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت ہے
मुसलमान भेदभाव नहीं करते, वो आपकी सलाहियतों का एहतराम करेंगे। आप आइए। चुनांचे डॉक्टर साहब कलकत्ते गए और कलकत्ता से फिर एक बाकायदा सीट उनके लिए खाली की गई, और एक जगह है जो इस वक्त अब जैसूर खुलना की सीट, जैसूर खुलना की सीट एक मुस्लिम मेंबर असेंबली ने खाली की और डॉक्टर साहब को वहां से जिताकर फिर से उन्हें इस लायक बनाया कि वो असेंबली में जाकर कानून साजी कर सके। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मुसलमानों ने हर महाज पर इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है और ताउन किया है। और इससे ये भी पता चलता है कि मुसलमानों में, हिंदुओं में और दीगर बिरादरान वतन में यकजहती की जो रिवायात हैं वो कितनी मुस्तहकम थी। चुनांचे 17 जुलाई 1946 में डॉक्टर साहब उस सीट को जीत कर आए, 7 MLA ने उनकी तायीद की। ये सारी तफसीलात सुरेश माने ने अपनी किताब में लिख रखी है। और मुसलमान याद रखिए, जो मुल्क तकसीम हुआ है, दारुल उलूम देवबंद के अकाबिर हो, हमारे उलमा हो, यहाँ के बाबसीरत मुसलमान, इन पर तकसीम का इल्जाम नहीं आयद किया जा सकता। यहाँ के मुसलमान नहीं चाहते थे कि ये मुल्क तकसीम हो, और उस सिलसिले में भी बहुत सी ऐसी चीजें जो सामने नहीं आ पा रही हैं, हमारे सामने आनी चाहिए। एक बड़े ब्यूरोक्रेट गुजरे हैं TCA राघवन, जो पाकिस्तान में सफीर भी रहे हमारे। उन्होंने इस तरह के बहुत से वाकयात लिखे हैं कि ये कहानी तो आम है कि मुल्क जब तकसीम हुआ, मुल्क का बंटवारा हुआ, तो बड़ी तादाद में यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान का रुख किया। उन्होंने चाहा कि हम वहां चले जाएंगे, हमारे अम्बाल महफूज हो जाएंगे और हमारी जमीन जायदाद महफूज हो जाएगी। लेकिन उन्होंने लिखा है कि कई बड़े बड़े मुस्लिम जो नुमाया किरदार में थे, उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया तकसीम के बाद, हद दर्जे तक, आखिरी हद तक मुखालफत करते रहे। लेकिन जब उनकी मुखालफत काम नहीं आई तो वो पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान में आ गए। ऐसे लोगों की भी एक तारीख है। चुनांचे बैरिस्टर खालिद लतीफ गाबा का खास तौर से उन्होंने तस्करा किया है, जो बहुत बड़े मुसन्निफ और राइटर हैं। और इसी तरीके से हजरत मौलाना उस्मान फारूक हदीस साहब का भी राघवन ने बतौर खास तस्करा किया है। पाकिस्तान में थे ये, हिंदुस्तान आए, 25 साल तक अल जमीयत के एडिटर रहे और इन्होंने अपने कलम के जरिए, अपनी तहरीरात के जरिए हिंदुस्तान में यकजहती की रिवायात को बाकी रखने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो इस तरह मुसलमानों का किरदार हर जगह है। खुद खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सरहदी गांधी कहा जाता है और पाकिस्तान का वाहिद शहरी है जिसे हमारे इस मुल्क ने भारत रत्न का अवार्ड दिया है, वो भी चाह रहे थे कि यहाँ आ जाए, लेकिन गांधी जी ने उन्हें कहा कि नहीं, आप वहीं रहिए, आप हमारे ख्यालात की वहीं तर्जमानी कीजिए। इस तरह बहुत सारे लोग हैं। ये जनरल शाहनवाज खान, जिनका तस्करा आप हजरात सुनते रहते हैं, ये जनरल शाहनवाज खान, ये भी तो असल में वहीं के रहने वाले थे। जब मुल्क आजाद हुआ है तो गांधी जी ने बाकायदा उन्हें लेटर लिखकर कहा कि मैं मुनासिब समझता हूं, आपके हालात ऐसे हैं, अगर आप पाकिस्तान जाना चाहें तो आपको हर तरह की सहूलत फराहम की जाएगी। लेकिन जनरल साहब ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं अब वहां जाना नहीं चाहता। हालांकि उनके खानदान के लोगों को वहां बड़ी मुराहत मिली, वो इसी मुल्क में रहे। और आपको एक बात और याद रखनी चाहिए, ये झंडा, इस झंडे की तारीख भी आपको मालूम होनी चाहिए कि 1857 से लेकर 1947 तक ये झंडा लाल किला पर नहीं था। लाल किला पर यूनियन जैक लहरा रहा था, बरतानिया का इख्तिदार था। लेकिन 1947 में जब आजादी का ऐलान होता है तो सबसे पहले जिस जयाले और सपूत को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप यूनियन जैक को यहाँ से हटाइए और तिरंगा लाल किला पर लहराइए, ये सबसे पहला काम ये जनरल मेजर शाहनवाज खान ने किया था। हमें ये तारीख भी अपनी मालूम होनी चाहिए। ये वो जनरल शाहनवाज खान है, सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज बनाई थी, उस फौज का कमांडर इन चीफ इन्हें बनाया था। और इन पर बड़ा एतमाद था लोगों को। जब लाल किला में अंग्रेजों ने इन्हें कैद किया और फांसी की सजा सुनाने का फैसला किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद वो इनके मुकदमे को लड़ने के लिए वकील के हैसियत से अंग्रेजों की अदालत में पेश हुए थे। और उन्होंने साफ कहा था, अगर जनरल साहब को इनके 2 साथियों के साथ फांसी दी गई पूरे मुल्क में आग लग जाएगी। चुनांचे अंग्रेजों के हाथ पैर फूल गए और उन्हें रिहा कर दिया। तो ये मेजर जनरल शाहनवाज खान है। ये वो लोग हैं, ये हिंदुस्तान के जब सपूत हैं, हिंदू और मुसलमान सबों ने मिलकर इस कारवां को आगे बढ़ाया है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सभी हजरात जानते हैं, उनकी खिदमत और उनकी कुर्बानियों को भी जानते हैं। लेकिन जिस वक्त उन पर आफत आई थी, उन्होंने आसपास के राजवाड़ों से, राजाओं से मदद मांगी, कोई आगे नहीं बढ़ा। ये अली बहादुर खान थे,
बांदा के नवाब ये 10,000 की फौज लेकर रानी की मदद के लिए आगे आए। उसकी पादाश में अंग्रेजों ने अली बहादुर खान की सल्तनत और उसके पूरे हुकूमत को खत्म कर दिया और उसके कुछ ही सालों के बाद बनारस की जेल में अली बहादुर खान साहब का इंतकाल हो गया। भगत सिंह ये मुल्क के बहुत बड़े मुहिब्बे वतन सिपाही रहे हैं और उनके कारनामे किताबों में भी यह सब सुनते हैं। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त भगत सिंह पर केस चल रहा था, उनका केस लड़ने की किसी वकील ने हिम्मत नहीं थी। कोई अपने आप को पेश करने को तैयार नहीं था, कोई मुत्तहम नहीं होना चाहता था। ये एक मुसलमान वकील थे, बैरिस्टर आसिफ अली, उन्होंने उनका केस लड़ा है और उस केस की पूरी फाइल अब शाये हो गई है। तो इस तरह मुसलमानों में, हिंदुओं में एक दूसरे के लिए इंसानियत की बुनियाद पर, भाईचारे की बुनियाद पर जो जज्बात थे वो हमें देखना चाहिए। और ट्रायल कोर्ट में भगत सिंह की फांसी का फैसला हो रहा था, लेकिन आप इस तारीख को भी याद रखिए कि उसमें 2 ईसाई जज थे, अंग्रेज थे, एक मुसलमान जज। उस फैसले पर जब दस्तखत करने की बारी आई, उन सब ने दस्तखत कर दिए कि भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन ये मुस्लिम जज, जो यही सहारनपुर के रहने वाले आगा हैदर अली, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ऐसे मुहिब्बे वतन के कत्ल का फतवा नहीं दे सकता, मैं इस फांसी के कागज पर सिग्नेचर नहीं कर सकता। और आखिर में यह नौबत आई कि उन्हें अपनी मुलाजमत से मुस्ताफी होना पड़ा और फिर सहारनपुर आ गए। लेकिन उन्होंने अपने जमीर के खिलाफ ये गवारा नहीं किया। इसलिए भगत सिंह ने जैसे कुर्बानी दी है, याद रखिए आगा हैदर जो उस वक्त के जस्टिस थे, उनकी कुर्बानी भी कम नहीं। तो ये मुसलमानों की तारीख है, किस तरह इन्होंने आपस में एक दूसरे के लिए कुर्बानियां दी हैं। जब पाकिस्तान बना है, हाशिम प्रेम जी जो विप्रो कंपनी के इस वक्त के जिम्मेदार हैं, उनके वालिद साहब, उन्हें बादाफ्ता मिस्टर जिन्नाह ने ऑफर की थी कि आप आइए और पाकिस्तान की वजारत खजाना को संभालिए, आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाइए। लेकिन हाशिम प्रेम जी ने कहा कि नहीं, मैंने जीना और मरना हिंदुस्तान ही में जीने और मरने का फैसला किया है, इसलिए उन्होंने माजरत कर दी। तो ये वो हजरात हैं जिनकी कुर्बानियां हैं इस मुल्क के लिए। उन्होंने वाकईतन इस देश से मोहब्बत की है और इस देश की मिट्टी में उनकी कुर्बानियों की खुशबू रची बसी हुई है और इस तरह यह आजादी का कारवां आगे बढ़ा है और इस मुल्क के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी है। और कैसी कुर्बानी, ये नहीं कि मुसलमानों ने कोई इस मुल्क पर एहसान किया, हमारे तलबा ने तिरंगा रैली निकाल दी तो कोई एहसान का जज्बा है या किसी से खौफ और दहशत का जज्बा है, नहीं, बल्कि इसलिए कि ये देश हम सबका है और इस देश में रहने वाले हर एक को जो देश से मोहब्बत होनी चाहिए। हम किसी से या हमारे बच्चे किसी से डर या खौफ नहीं खाते। ये तो शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के औलाद हैं, ये हजरत मदनी के फिक्र को अपने अंदर संभाले हुए हैं, ये क्यों डरेंगे इन लोगों से। इसलिए हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को जब 1953 में पद्मा भूषण अवार्ड पेश किया गया, हुकूमत ने चाहा आपका एजाज करे, तो हजरत ने पूरी इस्तिग़नाइयत के साथ जो जवाब दिया था, हजरत ने फरमाया कि देखो, आजादी हमारी जिम्मेदारी थी, हमने अपना फर्ज अदा किया है, हमने अपने वतन पर कोई एहसान नहीं किया है, हमने ये इसलिए नहीं किया है कि हम इस पर कोई अज्र या ये कि कोई इनाम वसूल करें, ये इवार्ड और ये इनाम तुम्हें मुबारक हो। हजरत ने पूरी इस्तिग़नाइयत का मुजाहरा किया। ये हमारी तारीख है। मौलाना सईद अहमद अकबराबादी जो दारुल देवबंद की मजलिस शूरा के रुकन थे, कई बार उन्हें पेशकश हुई कि आप पेंशन ले लीजिए, उन्होंने साफ मना कर दिया। हम सब के उस्ताद हजरत मुफ्ती ज़फ़ीरुद्दीन साहब मिफ्ताही रहमतुल्लाह अलैह जो आजादी के लड़ाई में बहुत पेश थे और उनके एक ऑर्डर पर मऊ में पटरियां उखाड़ दी गई थी 1942 में और वो बहुत दिनों तक अंग्रेजों के मतलूब रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने इसका कोई सिला वसूल नहीं किया। 12 उनसे मुतालबा किया गया कि आप उस जमाने का एक कागज जमा कर दीजिए, ताहयात आपके लिए पेंशन जारी हो जाएगी, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। ये हमारे बुजुर्गों का किरदार है। उन्होंने अपना फर्ज समझकर इस देश की और अपने वतन की खिदमत समझकर इसकी मोहब्बत में ये सारी कुर्बानियां दी हैं। इसलिए उस वक्त के जो लोग थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, वो इन कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते थे, दारुल के किरदार को समझते थे। शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह और उनके शागिर्द हजरत मदनी के किरदार की अहमियत की निगाह से देखते थे। चुनांचे D.R. गोयल है, उनकी एक किताब है अंग्रेजी में, उसमें उन्होंने लिखा है कि उस वक्त के मुल्क के आजाद होने के बाद उस वक्त के रेल मिनिस्टर जो बाद में
प्राइम मिनिस्टर भी बने, यानी लाल बहादुर शास्त्री, और उनके साथ एक और मिनिस्टर थे महावीर त्यागी। ये दोनों आए, दारुल आए। हजरत के पढ़ाने का वक्त था, ये दोनों साथ साथ हजरत के साथ दरसगाह में चले। जैसे असातिज़ा आज भी बैठते हैं, हजरत तख्त पर बैठे और तलबा सामने बैठ गए, ये दोनों भी नीचे आकर बैठ गए। हजरत ने उनके लिए एहतमाम किया, शास्त्री जी से कहा कि आप ऊपर मेरे पास आ जाइए। तो शास्त्री जी ने उस वक्त जो जवाब दिया था, B.R. गोयल ने अपनी किताब में लिखा है, शास्त्री जी ने कहा, लाल बहादुर शास्त्री जो बाद में हमारे मुल्क के वजीर आजम बने, उन्होंने कहा कि हमें मालूम है आपकी अहमियत और कदर मंजिलत भी मालूम है, हम लोग सब जेल में एक साथ थे, तो जेल में भी यही होता था, आप ऊंचाई पे बैठते थे और हम लोग नीचे बैठते थे, आप हमें ज्ञान देते थे, मानवता और इंसानियत का सबक पढ़ाते थे। आज हम चाहते हैं कि उन्हीं यादों को ताजा करें, इसलिए हमें अपने शागिर्दों के साथ में बैठने दीजिए और वो ऊपर नहीं बैठे। ये वो लोग थे जिनके दिलों में कद्र थी, हमारे बुजुर्गों की कद्र थी। शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने आजादी की पूरी एक तहरीक छेड़ी थी और अपने शागिर्द मौलाना उबैदुल्लाह सिद्दीकी को बाज़ाब्ता काबुल भेजा था, और काबुल में आजाद हुकूमत कायम की गई थी, जिसके सदर बनाए गए थे राजा महेंद्र प्रताप, और उसके जो वजीर आजम थे ये मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली थे, जिनके नाम पर भोपाल में यूनिवर्सिटी है, और उसके वजीर खारजा मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी बने थे। और इन्होंने पूरा एक प्लान बनाया था, और उस प्लान की तफसीलात इन्होंने रेशमी खतूत के जरिए हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे मुताल्लिकीन तक पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन ये राज फाश हो गया और अंग्रेजों के जासूसों की वहां तक रसाई हो गई और वो तहरीक बज़ाहिर नाकाम हो गई। लेकिन बहरहाल अब जो बरतानिया ने उस वक्त के जितनी एविडेंस थे और जितने कागजात थे उनको जब आम किया तो उससे पता चलता है कि एक नहीफ और लागर जिस्म रखने वाला शख्स दारुल उलूम देवबंद की दरसगाह में बैठकर कैसे एक आलमी तसव्वुर के साथ अपने मुल्क की आजादी को, मुल्क की आजादी का ख्वाब अपने आंखों में सजाया हुआ था, और उसके लिए उसने कैसी प्लानिंग की थी। इस केस को जर्मनी के वजारत खारजा के जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं उन्होंने बर्लिन प्लान का नाम दिया है, यानी उसको इन्होंने जर्मनी की तरफ मंसूब किया है, और हमारे यहाँ ये रेशमी रोमान तहरीक के नाम से मशहूर है। तो बहरहाल ये सारी तफसीलात तारीख की किताबों में मौजूद हैं। इनके कहने का खुलासा यह है कि सभी हजरात ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, दारुल उलूम देवबंद का भी बड़ा किरदार है। इसलिए जो लोग तारीख को पढ़ते हैं, तारीख से वाकफियत रखते हैं, जिनके अंदर समझदारी है, इंसानियत है, वो कभी भी दारुल उलूम देवबंद पर और इस तरह के पर नहीं उठाते, बल्कि वो यहाँ आते हैं और इसकी अजमत को सलाम करते हैं, यहाँ आते हैं और आपकी तरह तालिब इल्मों की सफ में बैठते हैं, हालांकि वो वजीर रेलवे होते हैं, यूनियन मिनिस्टर होते हैं, और इस तरह इस दारुल उलूम देवबंद को खिराज अकीदत पेश करते हैं और इसकी कुर्बानियों को सलाम। तो जरूरत इस बात की है कि आजादी के वक्त और आजादी से पहले इस देश में जो भाईचारे का माहौल था, जमीयत उलमा हिंद की जो सरगर्मियां थी और सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी थी, इस वक्त भी इस मुल्क में भाईचारे का वही माहौल बने। आज यौम आजादी के मौके पर जहां बिरादरान वतन को और सभी अफराद को, बाशिंदगान वतन को मुबारकबाद पेश की जा रही है, उसके साथ साथ दारुल की तरफ से यही पैगाम है कि आपस में मोहब्बत का माहौल बनाए रखें और एक दूसरे के लिए इंसानियत की बुनियादों पर हमदर्दी का जज्बा रखें। यही हमारा पैगाम है। उनका जो पैगाम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है, पहुंचे जहां तक पहुंचे। अब मैं हजरत वाला को दावत देने से पहले